یونیک کلاسز میں محمد صلاح الدین رضوی آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، ہر روز کی طرح آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جس کا موضوع ہے اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اب تک کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور آپ کا بیل آئیکن دبانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پہنچے آپ تک۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد دوستو، اگر آپ کو ذرا برابر بھی لگتا ہے کہ اپنے دوستوں کو شیئر کرنا چاہیے تو انہیں ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکے، اور کامنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اپنے مشوروں سے ہمیں نوازیں۔ تو چلیے دوستو، بات کرتے ہیں کسی بھی زبان کی آغاز و ارتقاء کی داستان کچھ مخصوص تہذیبی و معاشرتی حالات سے جڑی ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنی ترقی یافتہ شکل اختیار کرنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزرتی ہے۔ اسے رنگ و روپ بخشنے اور نکھارنے سنوارنے میں مختلف عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ اردو زبان جو آج کی چند ترقی یافتہ اور کثرت سے بولی جانے والی زبانوں میں سے ایک زبان ہے، اسے بھی معارض وجود میں آنے سے پہلے مختلف مراحل سے گزرنا پڑا۔ ان مختلف مراحل اور تہذیبی معاشرتی عوامل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ماضی کی طرف پلٹنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کے قدیم باشندے دراوڑ تھے۔ آریہ قوم باہر سے آئی اور مقامی باشندوں کو پیچھے ڈھکیل کر ملک پر قابض ہو گئی۔ آریہ قوم ملک پر ایک نئی تہذیبی طاقت بن کر ابھری۔ ان کی زبان کو مرکزی حیثیت حاصل ہوئی۔ مقامی باشندوں سے میل جول کی وجہ سے آریاؤں کی زبان متاثر ہونے لگی اور بہت سے لفظوں کا تلفظ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ آریاؤں نے اپنی زبان کو منظم اور محفوظ رکھنے کے خیال سے اسے قواعدی اصولوں سے جکڑ دیا اور اپنی زبان میں صرف ٹکسالی الفاظ باقی رکھے۔ مقامی اثرات سے پاک و صاف ہو کر ان کی زبان کو اپنے معیار باقی رکھا اور اسی معیاری زبان نے سنسکرت کا نام پایا۔ اس زبان کو کافی فروغ حاصل ہوا، لیکن اس کا رشتہ عوام سے کٹ گیا اور ایک مخصوص دائرے تک سمٹ کر رہ گئی۔ عوام کی زبان مختلف علاقوں میں تھوڑی فرق کے ساتھ ایک خاص رسم الخط میں موجود رہی۔ اسے پراکرت کا نام دیا گیا۔ یہ پراکرت برابر ترقی کرتی رہی اور مختلف علاقوں میں وہ مختلف روپ اختیار کرتی رہی۔ آگے چل کر ان پراکرتوں نے بھی ادبی حیثیت حاصل کر لی اور عوام سے ان کا تعلق منقطع ہو گیا۔ عوام عام بول چال کی زبان بولتے رہے جس میں مختلف بولیوں کی آمیزش ہوتی۔ اہل علم حقارت سے اسی عوامی زبان کو اپبھرنش یعنی بگڑی ہوئی زبان کہتے، لیکن عوام میں اس کی مقبولیت بڑھتی رہی۔ اہل علم بھی اس زبان کی طرف متوجہ ہوئے اور دوسری بولیاں بھی اس سے متاثر ہوئی۔ ان اپبھرنشوں کی نشو و نما شمالی ہند میں سن 600 عیسوی سے سن 1000 عیسوی تک ہوتی رہی، پھر اس کے ارتقاء کی رفتار رک گئی اور مختلف اپبھرنشوں سے جدید ہند آریائی زبانوں کی تشکیل کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ اردو زبان کی تشکیل کا بھی یہی زمانہ ہے، اگرچہ اس کا باقاعدہ ارتقاء مسلمانوں کے ہاتھوں دہلی کی فتح کے بعد شروع ہوا۔ دوآبہ شورسینی پراکرت کا علاقہ تھا، جلد ہی پراکرت شورسینی اپبھرنش کے علاقے میں عام ہو گئی۔ اس زبان کو کھڑی بولی اور ہندوستانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی زمانہ میں مسلمان اس علاقے میں عربی فارسی زبان کے ساتھ آئے۔ عربی و فارسی زبانوں کے الفاظ کھڑی بولی میں داخل ہونے لگے، جس سے نئی زبان اردو کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ مسلمانوں کی آمد سے اردو زبان کی ترقی کی رفتار میں یقیناً تیزی آئی، لیکن اردو کی ابتدا کو مسلمانوں کی آمد سے منسوب کرنا کسی طرح مناسب نہیں ہوگا۔ یہ ایک لسانی مظہر تھا جو بہرحال وجود میں آتا، اگرچہ اس کے وجود میں آنے میں کافی تاخیر ہوتی۔ بقول ڈاکٹر سینتی کمار چٹرجی، اگر مسلمان شمالی ہند میں داخل نہ ہوئے ہوتے تو جدید ہند آریائی زبانوں کی آغاز میں کافی تاخیر ہوئی ہوتی۔ اس طرح شورسینی اپبھرنش اور عربی و فارسی زبانوں کی آمیزش سے اردو زبان کے خد و خال نمایاں ہونے لگے اور شمالی ہند میں 200 سال تک تشکیلی دور سے گزرنے کے بعد 13ویں صدی میں اس نے اپنی آغاز و ارتقاء کا باقاعدہ سفر شروع کیا۔ اس طرح اردو زبان کی آغاز کی وہی تاریخ ہے جو فتح دہلی کی تاریخ ہے۔ فتح دہلی کے بعد مختلف علاقوں سے لوگ دہلی آنے لگے۔ آنے والے لوگوں میں زیادہ تر لوگوں کی زبان پنجابی تھی اور نواح دہلی میں ہریانی، کھڑی بولی، برج بھاشا اور میواتی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ ان زبانوں کی لسانی امتزاج سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے پہلے ریختہ، ہندوی اور بعد میں اردو کا نام دیا گیا۔ اس طرح شمالی ہند میں مسلمانوں اور دوسری زبان بولنے والوں کی میل جول سے اردو زبان کی نشو و نما کے لیے راہ ہموار ہوئی۔ یہ زبان عوام ہی تک محدود نہ رہی، بلکہ اس زمانے کے فارسی و ترکی شعراء نے بھی اس زبان کی طرف توجہ دی۔ چنانچہ اس زمانے کے ایک شاعر خواجہ سید سلمان نے اس نئی زبان میں اشعار کہے۔ پرتھوی راج نے اپنی راسوں میں اس زبان کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ پھر
100 साल बाद खुसरू ने अपनी पहेलियों में खड़ी बोली में अशार कहे। अपने इस हिंदवी कलाम पर फ़ख्र भी किया। खुसरू के अलावा इस ज़माने में जो फ़ारसी ज़बान में किताबें लिखी गईं उनमें चौधरी, मंडी, राज, घड़ियाल वगैरह जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। इस तरह इस नई ज़बान का दायरा आहिस्ता आहिस्ता वसी होता गया। इस ज़बान को वुसअत देने में उन फ़ौजियों का भी बड़ा हाथ रहा है जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आकर दिल्ली में जमा होते थे। ये फ़ौजी आपस में इसी ज़बान में बातचीत करते थे जो दिल्ली और उसकी क़ुर्ब व जवार में राइज थी, और ये राइज ज़बान खड़ी बोली थी जिसमें पंजाबी, हरियाणी और बुर्ज बोलियों की आमेज़िश थी। ये फ़ौजें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में आती जाती रहती थी जिससे उस नई ज़बान को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ। इन फ़ौजियों के अलावा उन मालगुजारी वसूल करने वाले मुलाज़मीन की कोशिशों से भी इस नई ज़बान को फ़रोग़ हासिल हुआ जो आवाम से रब्ता के लिए मकामी ज़बान बोलते थे और साथ ही फ़ारसी इस्तिलाहों से भी काम लेते थे। लेकिन इस ज़बान के फ़रोग़ और नशो नुमा में सूफ़िया और बुज़ुर्गान दीन की खिदमत सबसे ज़्यादा हैं, जिन्होंने आवाम तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए इस ज़बान को अपना ज़रिया बनाया। उन बुज़ुर्गों का हल्का बहुत वसी था। ये अपना पैगाम पहुँचाने के लिए हर तबक़ा और हर फ़िरक़े के पास जाते। इस तरह उनके पैगाम के साथ साथ इस नई ज़बान का दायरा भी वसी होता गया। इन बुज़ुर्गान दीन के मवाइज़ और मलफूज़ात में इस नई ज़बान का अक्स वाज़ेह तौर पर मौजूद है। इन बुज़ुर्गान दीन में शेख फ़रीदुद्दीन गंजशकर, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, शेख बू अली कलंदर, शेख शरफ़ुद्दीन यहिया मुनीरी, शेख अब्दुल कादिर गंगोही वग़ैरह की कोशिश ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। इन सूफ़िया कराम के अलावा नामदेव, कबीरदास, गुरु नानक जैसे बुज़ुर्गों के कलाम भी उर्दू का नक्श अव्वल मौजूद है। डॉक्टर मसूद हुसैन खां उर्दू ज़बान के इर्तिक़ा के सिलसिले में फ़ौजियों, सूफ़ियों और बुज़ुर्गों की कोशिशों का एतराफ़ करते हुए लिखते हैं कि ज़बान दहली खड़ी बोली का इर्तिक़ा एक तरफ उर्दू की शक्ल में खुसरू और दीगर सूफ़िया कराम के हाथ हो रहा था, तो दूसरी तरफ लश्करियों, सिपाहियों और साधुओं के ज़रिए पंजाब, दक्कन और यूरोप के इलाक़ों में रिवाज पा चुकी थी, जिसकी शहादत हमें नामदेव, कबीरदास और गुरु नानक के कलाम से मिलती है। शुमाली हिंद में नशोनुमा पाने वाली ज़बान दक्कन में 14वीं सदी की अवाखिर में पहुँची है। अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के हमलों और सूफ़िया कराम की कोशिशों से दक्कन में उर्दू के लिए राह हमवार हुई, लेकिन उस ज़बान की तरक्की और फ़रोग़ के इम्कानात सही मानों में उस वक्त रोशन हुए जब मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना पाए तख्त बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक के साथ एक बहुत बड़ी आबादी बशमूल उलमा, फ़ज़ला, सूफ़िया कराम दिल्ली से दक्कन में मुंतकिल हुई। इतनी बड़ी आबादी दक्कन में पहुंच जाने से नई ज़बान को फलने फूलने का बेहतरीन मौका नसीब हुआ। आगे चलकर बहमनी अहद सल्तनत और आदिल शाही और कुतुब शाही सलातीन के ज़ेर साया इस ज़बान को बहुत फ़रोग़ हासिल हुआ और मिराजुल आशिकीन, ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसूद राज, शहादतुल हकीकत, शमशुल शाक, इरशादनामा, शाह बुरहानुद्दीन जानम, कुल्लियात मोहम्मद कली कुतुब शाह, अली आदिल शासानी, फूलबन, इब्न निशात, कुल्लियात सिराज, सिराज औरंगाबादी और कुल्लियात वली दकनी जैसे शाहकार कारनामे हैं। उर्दू ज़बान की फ़रोग़ व इर्तिक़ा की रोशन दलील हमारे पास मौजूद है। ये ताज्जुब की बात है कि उर्दू ज़बान शुमाली हिंद के मुकाबले में दक्कन में देर से पहुँची, लेकिन बहुत जल्द वहाँ एक वक़ी अदबी सरमाया वजूद में आ गया। शुमाली हिंद में हमें इस मुद्दत में कोई ख़ास अदबी सरमाया नज़र नहीं आता। ये ज़बान बोलचाल की ज़बान रही, फ़ारसी ज़बान को अदबी हैसियत हासिल रही। हमें अदबी सरमाया के तौर पर बाज़ बुज़ुर्गों के मलफूज़ात, अमीर खुसरू की तख्लीक़ात, अफ़ज़ल पानीपती की बिकट कहानी और जाफ़र ज़टली की तंज़िया नज़में मिलती हैं। दिल्ली में वली की आमद उर्दू ज़बान व अदब के लिए नुक़्ते आगाज़ साबित हुई। शाह हातिम आबरू और मिर्ज़ा मज़हर जान जाना ने अपनी तख्लीक़ात से इस ज़बान को वक़ियत बख्शी। फिर मीर सौदा और दर्द ने इस ज़बान को ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दिया। गालिब, मोमिन, ज़ौक़ और आतिश मसहफ़ी वग़ैरह ने इस ज़बान को ऐसी रोशनी बख्शी जो आज भी पूरी तरह रोशन और दरख्शां हैं। ये थी उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिक़ा की कहानी। इससे साफ़ तौर पर ज़ाहिर होता है कि यह ज़बान हिंदू मुस्लिम इत्तिहाद और मुश्तरका तहज़ीब के तौर पर वजूद में आई। आज भी ये मुश्तरका तहज़ीब और कौमी यकजहती के चिराग को रोशन किए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कुछ मारूज़ी सवालात की तरफ जिसका ताल्लुक़ वीडियो से है। पहला सवाल है दोस्तों आज का, हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदा कौन थे? आज का पहला सवाल है दोस्तों, हिंदुस्तान के कदीम बाशिंदा कौन थे? जवाब द्राविड़। सवाल नंबर 2, अपभ्रंश का क्या माने हैं? लफ्ज़ अपभ्रंश के क्या माने हैं? जवाब बिगड़ा हुआ लफ्ज़ या बिगड़ी हुई ज़बान। सवाल नंबर 3,
अपभ्रंश की नशोनुमा में शुमाली हिंद में कब से हुई? अपभ्रंश की नशोनुमा शुमाली हिंद में कब से कब तक हुई? सवाल नंबर 3 गाइस फिर से सुनेंगे। अपभ्रंश की नशोनुमा शुमाली हिंद में कब से कब तक हुई? जवाब सन 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। सवाल नंबर 4 अरबी व फारसी ज़बानों की अल्फाज खड़ी बोली में दाखिल होने से किस ज़बान के लिए राह हमवार हुई? सवाल नंबर 4 गाइस फिर से सुनेंगे। अरबी फ़ारसी ज़बानों की अल्फाज खड़ी बोली में दाखिल होने से किस ज़बान के लिए राह हमवार हो गई? जवाब उर्दू के लिए। सवाल नंबर 5 अगर मुसलमान शुमाली हिंद में दाखिल न होते तो भी जदीद हिंद आरियाई ज़बानों की आगाज़ में काफ़ी ताख़ीर होती, ये कौल किसका है? जवाब सेंती कुमार चटर्जी का। सवाल नंबर 6 उर्दू अपनी आगाज़ व इर्तिका का बाकायदा सफ़र कब शुरू किया? जवाब 13वीं सदी में। सवाल नंबर 7 खड़ी बोली में किन किन बोलियों की आमेज़िश पाई जाती है? सवाल नंबर 7 गाइस फिर से सुनेंगे। खड़ी बोली में किन किन बोलियों की आमेज़िश पाई जाती है? जवाब पंजाबी, बुर्ज भाषा और हरियाणवी की आमेज़िश पाई जाती है। सवाल नंबर 8 ज़बान दहली खड़ी बोली का इर्तिका का एक तरफ उर्दू की शक्ल में खुसरू और दीगर सूफिया कराम के हाथों हो रहा था तो दूसरी तरफ लश्करियों, सिपाहियों और साधुओं के ज़रिए पंजाब, दक्कन और यूरोप के इलाकों में रिवाज पा चुकी थी, ये कौल किसका है? जवाब डॉक्टर मसूद हुसैन खां का। सवाल नंबर 9 मिराजुल आशिकीन किसकी तख्लीक है? जवाब ख्वाजा बंदा नवाज गेसूदराज की। सवाल नंबर 10 शहादतुल हकीकत के मुसन्निफ़ कौन हैं? जवाब शमसुल उस्साक। सवाल नंबर 11 सिराज औरंगाबादी के कुल्लियात का नाम क्या है? जवाब कुल्लियात सिराज। सवाल नंबर 12 दिल्ली में किसकी आमद उर्दू ज़बान व अदब के लिए नुक्ते आगाज़ साबित हुई? सवाल नंबर 12 और आखिरी सवाल गाइस दिल्ली में किसकी आमद उर्दू ज़बान व अदब के लिए नुक्ते आगाज़ साबित हुई? जवाब वली दकनी की। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, फिर मिलते अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आपका मुखलिस दोस्त मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी।